students, welcome back to our channel Toothbook. In today's video, we learn about impression material. So without wasting time, let's skip to the good part. First of all, the contents of the video goes like definition, then we have to learn classification of impression material according to different types. Then we learn each and every impression material briefly. So in that, first we learn impression compound, zinc oxide eugenol impression paste, then agar, alginate, and lastly elastomeric impression materials. Now coming to the definition, let me just take a marker. Yeah. It says that impression materials are used to copy the teeth and surrounding oral structures by creating a dental impression poured with a dental plaster to fabricate a dental cast. That means impression materials are those material which we use to copy, to replicate. It's a negative replica to replicate the teeth and the surrounding structures, creating a dental impression. And then what we do, we mix a dental plaster and pour in that dental impression to create a similar structure of our teeth and surrounding structures, which is called a dental cast. There are many classifications of impression materials, but the major important classification is according to the rigidity, whether the impression material is elastic or it's inelastic. We'll understand this by a help of a table. Here is our impression material. It can be inelastic, rigid, or it can be elastic. What happens in inelastic impression material is that it does not stretch, but means it's very stiff, it's rigid, it's inelastic. And the elastic impression materials are those which can stretch, the flexibility is more. So example under the rigid or inelastic impression materials are impression plaster, impression compound, zinc oxide eugenol impression paste, impression waxes. And the elastic impression material is again further subdivided under hydrocolloids or elastomeric impression material. Hydrocolloid means which have some water content in it, and elastomeric impression material means rubber like nature. So the elastomeric impression material will have a rubber like nature. Hydrocolloid impression materials examples are reversible or agar, and irreversible is alginate. Means hydrocolloid impression materials are those which have water content, and it can be reversible impression material or it can be irreversible impression material. Means those impression material which once we take an impression, then again we can revert back it to its original form, and again we can take the impression on the same patient with the same impression. So that's a reversible impression material. There the example is agar. And the irreversible impression material means where once we have taken an impression, then that same impression material will not be used again to that same patient, means that impression material will not be able to use again. Irreversible impression material, there the example is alginate. And the elastomeric impression materials are polysulfide, condensation silicon, addition silicon, or polyvinyl siloxane. And the last is polyether. We'll understand each of them in upcoming slides. So the other classifications are according to the tissue displacement. इसका मतलब है कि क्या impression material impression लेते वक्त हमारे oral soft tissues को compress करता है कि नहीं. तो इसके अंदर जो सब divisions है वो क्या है, या तो वो mucostatic होगा या mucocompressive होगा. As the name says, म्यूकोकम्प्रेसिव मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन को कंप्रेस करने वाला, म्यूकोस्टैटिक मतलब कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टैटिक रहने देगा, कंप्रेस नहीं करेगा. तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है. म्यूकोस्टैटिक में क्या हो जाएगा, इंप्रेशन प्लास्टर, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल इंप्रेशन पेस्ट, लो विस्कोसिटी एल्जिनेट, लो विस्कोसिटी इलास्टोमेरिक मटेरियल. और म्यूकोकम्प्रेसिव का क्या क्या एग्जांपल्स है, इंप्रेशन कंपाउंड, हाई विस्कोसिटी एल्जिनेट, हाई विस्कोसिटी इलास्टोमेरिक मटेरियल. नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूज इन डेंटिस्ट्री. तो इसमें क्या क्या सब डिविजन्स है, फॉर कंप्लीट डेंचर प्रोस्थेसिस, फॉर डेंचुलस माउथ. इसका क्या मतलब है, फॉर कंप्लीट डेंचर प्रोस्थेसिस मतलब क्या, अगर हमको कंप्लीट डेंचर बनाना है, मतलब सारे बतीसी बनाना है, सारे के सारे दांत, तो उसके प्रोसेसेस में क्या क्या स्टेप्स लगेंगे. पहले तो हमको दो तरीका का इंप्रेशन लेना पड़ता है, प्राइमरी इंप्रेशन और सेकेंडरी इंप्रेशन. प्राइमरी इंप्रेशन मतलब जब पेशेंट आ रहा है और हम पहली बार उसका इंप्रेशन ले रहे हैं कंप्लीट डेंचर बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इंप्रेशन. और सेकेंडरी इंप्रेशन मतलब कि जब हम पेशेंट का इंप्रेशन ले लिए प्राइमरी इंप्रेशन, उसके ऊपर फिर हम कास्ट पोर कर दिए, कास्ट बना लिए, फिर कास्ट के ऊपर स्पेशल ट्रे बना लिए. स्पेशल ट्रे मतलब कस्टम ट्रे, मतलब जो पेशेंट स्पेसिफिक ट्रे हो, उसके मुंह के साइज का ट्रे हो,
फिर उस पर हम इंप्रेशन मटेरियल वापस से लेके एक सेकेंडरी इंप्रेशन लेंगे मास्टर कास्ट बनाने के लिए। डोंट वरी गाइस, मैं कंप्लीट डेंचर प्रोसेस के स्टेप्स के ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगी। अभी ये समझते हैं कि दो तरीका का इंप्रेशन लिया जाता है, प्राइमरी इंप्रेशन एंड सेकेंडरी इंप्रेशन। तो जो कंप्लीट डेंचर प्रोसेस है, मतलब ऐसे पेशेंट है जिनके दांत तो है नहीं, तो सिर्फ ओरल टिश्यू होगा, मतलब ये जिंजाइवा एल्वियोलर रिज होगा। अगर आप इमेजिन करिए दांत नहीं है तो सिर्फ एल्वियोलर रिज होगा। तो एल्वियोलर रिज का जब हमको इंप्रेशन लेना हो तो कौन कौन सा इंप्रेशन मटेरियल यूज में आता है, एग्जांपल्स देखिए। प्राइमरी के लिए क्या क्या है, इंप्रेशन कंपाउंड है, इंप्रेशन प्लास्टर है, हाई विस्कोसिटी एल्जिनेट है। और सेकेंडरी के लिए क्या है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट और इलास्टोमर्स। वहीं अगर हम डेंचुलस माउथ का देखें, मतलब कि अगर कोई एक दो दांत मिसिंग है उसके लिए हमको बनाना हो प्रोस्थेसिस। डेंचुलस मतलब जिसके माउथ में दांत है, तो वैसे पेशेंट जिसमें ऑलरेडी दांत प्रेजेंट है नेचुरल टीथ और एक आध दो दांत मिस है, उसको अगर हमको रिकवर करना है तो उसमें इंप्रेशन लेने के लिए क्या क्या होगा, प्राइमरी के अंदर एल्जिनेट, सेकेंडरी में क्या क्या है, अगर या इलास्टोमर्स। तीसरा क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो क्या है, अकॉर्डिंग टू वाटर एफिनिटी। वाटर एफिनिटी मतलब क्या, वाटर लविंग नेचर। कौन सा इंप्रेशन मटेरियल हाइड्रोफिलिक है या तो हाइड्रोफोबिक है, ये देखेंगे। तो हाइड्रोफोबिक के अंदर क्या क्या एग्जांपल है, पॉलीसल्फाइड और पॉलीसिलिकॉन। और हाइड्रोफिलिक क्या है, पॉलीईथर। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग नेचर, मतलब पॉलीईथर ऐसा इंप्रेशन मटेरियल है जो एक्सेसिव सलाइवा या फिर वाटर जहाँ प्रेजेंट है वहां पे भी अच्छे से काम कर सकता है क्योंकि वो वाटर लविंग नेचर है। और हाइड्रोफोबिक जस्ट उसका उल्टा है। एक और क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, कैसे हम मिक्स किए, क्या वो हैंड मिक्सिंग है कि वो मैकेनिकल मिक्सिंग है, मतलब मशीन के थ्रू हम उसको मिक्स करवा रहे हैं या अपने ही मैनुअली हाथ से मिक्स कर रहे हैं। अभी हैंड मिक्सिंग में क्या क्या आएगा, डिफरेंट वेज ऑफ मिक्सिंग। जैसे कि नीडिंग, नीडिंग मतलब जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे नीडिंग, लिटरली हमको उसको बस ऐसे मिलाना होता है जैसे हम आटा को गूंथते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलेट कर करके मिक्स करना होता है। और विगरस मिक्सिंग मतलब एकदम ऐसे झालमुड़ी बनाते हैं ना, एकदम विगरसली ऐसे मूव करते हैं, उसको बोलते हैं विगरस मिक्सिंग। तो विगरस मिक्सिंग का एग्जांपल क्या है, एल्जिनेट। नीडिंग का एग्जांपल क्या है, इंप्रेशन कंपाउंड, मतलब ऐसे ऐसे करके इंप्रेशन कंपाउंड को मिक्स करते हैं। या फिर पुट्टी कंसिस्टेंसी इलास्टोमर्स। और सर्कुलर मोशन का क्या है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट और पॉलीसल्फाइड। मैकेनिकल मिक्सिंग में हम इसमें से कोई भी मशीन में डाल के भी मिक्स करवा सकते हैं। एक लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू ट्रे यूज्ड फॉर इंप्रेशंस। मतलब अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ट्रे यूज होता है अलग अलग इंप्रेशन मटेरियल के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंप्रेशन मटेरियल है जो ट्रे में स्टिक होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो स्टिक ही नहीं होते, तो उसको ट्रे में चिपका के रखने के लिए ताकि हम अच्छे से इंप्रेशन ले सके एडेसिव लगाया जाता है। तो अलग अलग इंप्रेशन मटेरियल का अलग अलग नेचर है, उस हिसाब से हम ट्रे यूज करेंगे। एक है स्टॉक ट्रे और एक है स्पेशल ट्रे। स्टॉक ट्रे मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, और स्पेशल ट्रे या कस्टम ट्रे मतलब होता है जो पेशेंट स्पेसिफिक हो। तो ऐसे दो तरीका का ट्रे है। अभी स्टॉक ट्रे में क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रे, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रे भी है। तो कुछ कुछ मटेरियल है जो स्टिक होता है। इंप्रेशन कंपाउंड के लिए हम नॉन परफोरेटेड इंप्रेशन ट्रे लेते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग एग्जांपल्स है। सो वाई देर आर सो मेनी इंप्रेशन मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट। देखिए, कुछ इंप्रेशन मटेरियल पहले डिस्कवर हुए, फिर उसके अंदर कुछ एडवांटेजेस रहे होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहे, तो उसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए और एक नया अपडेटेड फॉर्म ऑफ इंप्रेशन मटेरियल डिस्कवर हुआ। तो ऐसे ही ग्रेजुअली बहुत सारे इंप्रेशन मटेरियल आ गए। फर्स्टली हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इंप्रेशन कंपाउंड। इंप्रेशन कंपाउंड ये देखिए, ये ऐसा दिखता है ऐसे। अगर ये ऐसे डिस्क शेप में अवेलेबल हो ना, तो इसको केक फॉर्म में बोलते हैं, ये केक फॉर्म में अवेलेबल है। इसको क्या करते हैं, ये बहुत स्टिफ रहता है, इसको गर्म पानी में हम डालते हैं ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ताकि इजीली मैनिपुलेट हो सके। फिर इसको हम नीडिंग मेथड से मिक्स करते हैं और फिर वी लोड इट ऑन अ इम्प्रेशन ट्रे एंड देन वी पुट दैट इम्प्रेशन ट्रे इन पेशेंट्स माउथ एंड मेक एन इम्प्रेशन। सो ये देखिए, ये इम्प्रेशन लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ कमिंग टू इट्स एडवांटेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज, रीयूजेबल मटेरियल। मतलब कि इसको अगर सपोज हम एक बार ऐसे इंप्रेशन लिए, बाई चांस यहाँ पे कुछ खराब इंप्रेशन आया या ठीक से प्रॉपरली नहीं आया, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको वापस उखाड़ेंगे, वापस गर्म पानी में डालेंगे और नीडिंग मेथड से मिक्स करेंगे एंड देन वी अगेन लोड इट ऑन इंप्रेशन ट्रे और हम वापस से इंप्रेशन ले सकते हैं। तो ये रीयूजेबल मटेरियल है। हाँ, पर ये बहुत बार नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो केमिकल नेचर है वो डिस्टॉर्ट होते जाता है। तो एक दो बार के लिए ठीक है या तीन चार बार के लिए ठीक है रीयूज करना। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट पोर्शंस।
वही मैंने कहा ना कि अगर सपोज यहाँ पे जैसे ये कट आ गया या फिर ठीक से इंप्रेशन नहीं आया, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। हम बस उस पोर्शन को भी अगर हम गर्म करें और वहाँ पे थोड़ा मेल्ट करें और फिर वापस हम सेम इसको लोड करें सेम पोजीशन पे, तो वो जो वहाँ पे अच्छे से नहीं आया था इंप्रेशन, उसको हम वापस से करेक्टली ले सकते हैं। थर्ड क्या है, फ्लेमिंग ऑफ सरफेस इंक्रीजेस एक्यूरेसी। मतलब कि अगर हम फ्लेम करेंगे सरफेस को तो क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाता है। लास्ट क्या है, डू नॉट कोलैप्स। डू नॉट कोलैप्स मतलब कि थोड़ा थोड़ा स्टिफ रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा कोलैप्स हो जा रहा है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, रिकॉर्ड्स लेस डिटेल्स एंड अंडरकट्स। मतलब कि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स को तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, आप यहाँ पे देख ही सक रहे हैं। और ये क्या करता है, अंडरकट्स को, अगर हमारे कोई अंडरकट्स है ओरल टिश्यूज में या कहीं पे, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करता है। और एक और डिसएडवांटेज क्या है, कंप्रेस सॉफ्ट टिश्यूज। मतलब कि हमने पढ़ा था ना कि म्यूको कंप्रेसिव है इंप्रेशन कंपाउंड। इंप्रेशन कंपाउंड से जब हम इंप्रेशन ले रहे होते हैं तो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को कंप्रेस कर देता है, जिससे कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। थर्ड क्या है, पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कि ये डायमेंशनली स्टेबल नहीं है, मतलब कि ये डिस्टॉर्ट होने का ज़्यादा चांसेस है इंप्रेशन कंपाउंड का। और लास्ट क्या है, डिफिकल्ट टू रिमूव। डिफिकल्ट टू रिमूव मतलब एक बार जब हम पेशेंट के मुंह में इंप्रेशन लिए हैं, फिर जब ये सेट हो गया, इसको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल इंप्रेशन पेस्ट। आप ध्यान दिए होंगे कि मैं बार बार इंप्रेशन पेस्ट वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि कंजर्वेटिव में भी हमारा जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट है। तो टू डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या है, इंप्रेशन पेस्ट, क्योंकि हम इंप्रेशन ले रहे हैं ना, सो इंप्रेशन पेस्ट। ये देखिए इस फोटो पे, ये क्या है, ये ग्लास स्लैब है, ये सीमेंट मिक्सिंग स्पैचुला है, और ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का है ये है बेस, और ये ब्राउनिश कलर का ये एक्सेलरेटर। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल इंप्रेशन पेस्ट क्या होता है, इसे दो ट्यूब्स में मिलते हैं, जिसमें कि एक में बेस रहता है, दूसरे में एक्सेलरेटर। दोनों को हम इक्वल अमाउंट में लेके फिर ग्लास स्लैब के ऊपर इस सीमेंट स्पैचुला से मिक्स करते हैं इन अ सर्कुलर मोशन। उसके बाद जब हम इंप्रेशन लेते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। नाउ कमिंग टू इट्स एडवांटेजेस, फर्स्ट क्या है, एक्यूरेट सरफेस डिटेल को ये रिप्रोड्यूस करता है। मतलब ये इंप्रेशन कंपाउंड से बेटर है, ये ज्यादा अच्छे से सरफेस डिटेल को कॉपी करता है। दूसरा क्या है, डायमेंशनली स्टेबल। इंप्रेशन कंपाउंड नहीं था पर ये है, तो उसके डिसएडवांटेज को इसने ओवरकम किया है। तीसरा क्या है, माइनर डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड। मतलब अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार इंप्रेशन ले लिए तो चेंज नहीं कर सकते। डज नॉट स्टिक टू द कास्ट। मतलब कास्ट में ये स्टिक नहीं होता। जब हम इंप्रेशन लिए ना, अब इस पे हम कास्ट पोर करेंगे तो कास्ट जब सूख जाएगा, सेट हो जाएगा, तो हम कास्ट निकालेंगे तो वो इजीली निकल जाता है, ऐसा नहीं कि चिपक जाता है। यहाँ पे क्या है, इनफ वर्किंग टाइम। मतलब कि इसको जो सर्कुलर मोशन में हम मिक्स कर रहे हैं, वो वर्किंग टाइम जो है वो काफी अच्छा है, तो हम आराम से मिक्स कर सकते हैं, मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, स्पेशल ट्रे रिक्वायर्ड। मतलब कि ये नॉर्मल स्टॉक ट्रे में नहीं, हमको एक स्पेशल ट्रे का जरूरत होगा। स्टिक एंड अडियर टू टिश्यूज। ये भले कास्ट से ना चिपके लेकिन टिश्यूज में जरूर चिपकता है, तो ये इसका बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि पेशेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके ओरल टिश्यूज में ये चिपक रहा हो। ऑब्वियसली इरिटेंट फील होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूजेनॉल कॉजेज बर्निंग सेंसेशन टू सम पेशेंट्स। क्योंकि इसमें यूजेनॉल यूजेनॉल कुछ नहीं, क्लोव ऑयल है, जो क्लोव हम किचन में यूज करते हैं उसी का ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है। तो कुछ पेशेंट में क्या होता है, जो क्लोव ऑयल है वो इरिटेशन कॉज कर सकता है, इसीलिए एक बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है किसी किसी पेशेंट में। तो ये डिसएडवांटेज ही कह सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और लास्ट क्या है, कैन नॉट बी यूज्ड इन अंडरकट्स। अंडरकट्स को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करता है, सेम एज इंप्रेशन कंपाउंड। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इंप्रेशन का कौन सा मटेरियल अंडरकट्स को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट इज अगर। दिस इज द सेम अगर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। अगर का ये देखिए इंप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, ये अगर ट्रे में लोडेड है और ये दांतों का इंप्रेशन। नाउ कमिंग टू इट्स एडवांटेजेस, इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है, एक्यूरेट सरफेस डिटेल। ऑब्वियसली देखिए सारे इंप्रेशन मटेरियल का जो मेन बेसिक फंक्शन है वो क्या है, इंप्रेशन सही से लेना, तो वो जो सरफेस डिटेल्स है उसको ठीक ठाक ही रिप्रोड्यूस करता है सारे। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉइस्ट माउथ इज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब ये हाइड्रोफिलिक है, अगर हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, इसीलिए मॉइस्ट माउथ जहाँ पे एक्सेस सलाइवा होता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है, वहां हम जनरली अगर यूज करते हैं, क्योंकि मॉइस्ट नेचर इज नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी जितने भी हाइड्रोफोबिक इंप्रेशन मटेरियल्स है, वहां पे हमको ड्राई करना पड़ता है माउथ को, ताकि हम अच्छे से इंप्रेशन ले सके, पर अगर में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी अच्छा है। और लास्ट क्या है, गुड रिकवरी। इसका रिकवरी भी अच्छा है। इसका डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है, कि ये बहुत इकोनॉमिकल है। मतलब कि इट रिक्वायर्स स्पेशल एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स
इसका जो मैनिपुलेशन है, मिक्सिंग है, वो नॉर्मली हम ऐसे हैंड वैंड से नहीं कर सकते, मैकेनिकल मिक्सिंग ही करना होगा। और जो मशीन्स आते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो इसका मिक्सिंग मैनिपुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ देखिए साइड में एक फोटो लगाया हुआ है, ये एक मशीन है, बड़ा सा मशीन है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो बहुत झंझट वाला चीज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ओनली वन मॉडल कैन बी पोर्ड, मतलब ये जो इम्प्रेशन हमने लिया है इस पे एक ही बार कास्ट डेंटल प्लास्टर से हम कास्ट बना सकते हैं पोर करके। टीयर्स इजीली, इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि मतलब ये टूट जाता है, ये फट जाता है, टीयर आराम से फट जाता है अगर सही से हैंडल नहीं करें। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। इसका क्या मतलब है कि ये भी एक प्रोसेस है जिससे कि इम्प्रेशन मटेरियल से जो हम इम्प्रेशन लिए हैं, जैसे कि ये इम्प्रेशन मटेरियल से जब हम इम्प्रेशन लिए हैं, इसको क्या करेंगे, अभी इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू इसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग या कॉपर प्लेटिंग करेंगे, ताकि जब हम कास्ट पोर करें तो जो कास्ट हमारा है उसके वो सिल्वर या कॉपर प्लेटेड रहे। तो इसमें अगर में इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हमको ऐसे कॉपर प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड कास्ट नहीं मिल पाएगा। और लास्ट क्या है, हैज टू बी पोर्ड इमीडिएटली, मतलब एक बार इंप्रेशन हम ले लिए, ऐसा नहीं कि हम इसको रख दिए स्टोर कर दी, कास्ट को तुरंत पोर करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसका टीयर स्ट्रेंथ भी कम है, तो ये आराम से फट जाता है। और इसके डिसएडवांटेजेस ये भी है कि हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये वाटर लविंग है ना, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो सकता है, तो इसका जो शेप है, मतलब जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगा। तो इट हैज टू बी पोर्ड इमीडिएटली, द कास्ट हैज टू बी पोर्ड इमीडिएटली। सो नाउ द नेक्स्ट इज alginate. Here you can see the picture of an impression by an alginate, and in this picture there is a rubber bowl where alginate is mixed. और ये mixing कैसे है, vigorous mixing, वो ऐसे झालमुड़ी kind of fast, बहुत vigorous mixing. Now coming to the advantages, इसका पहला advantage क्या है, flexibility of set impression, मतलब कि alginate बहुत ही flexible है, इसका stretchability बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सेट इंप्रेशन, अगर इंप्रेशन सेट भी हो जाए तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है, एक्यूरेट सरफेस डिटेल्स, अगेन वही सेम बात, सारे इंप्रेशन मटेरियल्स का बेसिक फंक्शन इंप्रेशन लेना है, तो जो सरफेस डिटेल है वो एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस होगा। यूज्ड इन एक्सेसिव सलाइवा, ये देखिए एल्जिनेट क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, तो एल्जिनेट हम हाइड्रोकोलाइड के अंदर पढ़े थे ना, अगर और एल्जिनेट, तो ये दोनों ही वाटर लविंग, वाटर कंटेंट होता है इसमें। तो ऐसा पेशेंट जिसका माउथ में सलाइवा ज्यादा है, पेशेंट विथ एक्सेसिव सलाइवेशन, उस पेशेंट में भी प्रेफर एल्जिनेट से इंप्रेशन लिया जाए। इन दैट केस मॉइस्ट माउथ इज नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है, नॉन इरिटेंट एंड नॉन एलर्जिक, मतलब कि एल्जिनेट वो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जैसा नहीं है कि बर्निंग सेंसेशन कॉज करे, ये नॉन एलर्जिक है और नॉन इरिटेंट है, कोई भी एलर्जी नहीं कॉज करता है और पेशेंट को इरिटेट भी नहीं करता है। लास्ट क्या है, डज नॉट स्टिक टू द ट्रे। डज नॉट स्टिक टू द ट्रे मतलब जैसा कि हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का पढ़े थे ना कि वो ट्रे में चिपक जाता है, पर यहाँ पे क्या है, एल्जिनेट ये उसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करता हुआ, एल्जिनेट का क्या है प्रॉपर्टी, डज नॉट स्टिक टू द ट्रे, ट्रे से हम आसानी से निकाल सकते हैं इस इंप्रेशन को। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है आइए देखते हैं। पहला क्या है, पुअर टीयर स्ट्रेंथ। टीयर स्ट्रेंथ मतलब क्या, उसकी टूटने की क्षमता, तो वो क्या है, पुअर है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ देखिए ये वॉइड्स ये से टूट रहे हैं, क्योंकि इसका टीयर स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर है, इसीलिए देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टूट रहा है। नेक्स्ट क्या है, पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली इसका टीयर स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर है, तो इसका डायमेंशनली स्टेबिलिटी भी पुअर होगा, अभी आराम से टूट जा रहा है तो डायमेंशनली स्टेबल तो हुआ नहीं। नेक्स्ट क्या है, डिस्टॉर्शन इन सेट इंप्रेशन, मतलब कि ये जो इंप्रेशन जो सेट हो चुका है इसमें डिस्टॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा है। डिस्टॉर्शन मतलब टूटने के, फ्रीकिंग्स आने के चांसेस ज्यादा है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वॉइड है, ये यहाँ से टूट रहा है, तो ये मतलब ये टूट जाता है आसानी से, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे क्रैक्स आ जाते हैं। एक और क्या है, कैन नॉट बी करेक्टेड। अब इंप्रेशन कंपाउंड जैसा तो ये करेक्ट हो नहीं सकता, एक बार जो इंप्रेशन ले लिया है वो पूरा सेट हो चुका है इंप्रेशन, अब उसमें और करेक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। जैसा कि बाकी इंप्रेशन मटेरियल्स अभी आपने देखा था लास्ट वीडियोस में, वो इलेक्ट्रोप्लेट हो रहा था, पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। यहाँ एल्जिनेट से हम इलेक्ट्रोप्लेटेड कास्ट नहीं बना सकते। लास्ट क्या है, डिफिकल्ट मैनिपुलेशन। ऑब्वियसली ये जो मिक्सिंग टेक्निक है ना इसका, ये मतलब इसके लिए बहुत स्किलफुल टेक्निक है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, बहुत स्किल्ड हाथों से आराम से मिक्स होता है, मतलब इसमें इतना विग्रस मिक्सिंग चाहिए। ये मतलब लगता तो है कि झालमुड़ी मिक्स कर रहे हैं, बट इतना आसान नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इसका जो मिक्सिंग है, इसका मैनिपुलेशन है, ये डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका जो वर्किंग टाइम है ये बहुत कम है,
तो अगर आप बहुत डिले कर देंगे मिक्सिंग में तो ये बाउल में ही सेट हो जाएगा, तो आपको ट्रे पे लोड करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो बहुत आपको फास्टली और बहुत एक्यूरेटली ये सब मैनिपुलेशन करना होता है एल्जीनेट में। नाउ कम्स द मोस्ट एक्सेप्टेड, लाइक मोस्ट यूज्ड impression material in dentistry, that is elastomeric impression materials। ये अभी आजकल बहुत ट्रेंड में है, ज्यादातर डेंटिस्ट यही यूज कर रहे हैं। इसका इंप्रेशन का एक फोटो यहाँ पे है, ये देखिए। ये इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल से लिया गया इंप्रेशन है। इसका अवेलेबिलिटी कैसे है, ये ऐसे पुट्टी कंसिस्टेंसी में अभी आता है, मतलब इसमें भी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा। बट अगर आप ओवरऑल समझे तो ये ऐसे ट्यूब्स, कोलैप्सिबल ट्यूब्स में भी अवेलेबल होते हैं, पुट्टी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मतलब इसमें डेंसिटीज भी, विस्कोसिटीज भी बहुत सारे रेंज के होते हैं, लाइट बॉडीड, हेवी बॉडीड, मीडियम बॉडीड, ऐसे करके। मतलब कुल मिलाकर अगर आप समझे तो ये बहुत पतला कंसिस्टेंसी में भी अवेलेबल है और इतना थिक में भी है कि ये पुट्टी कंसिस्टेंसी हो, मतलब कि ऐसे आप मिक्स कर सके, इंप्रेशन कंपाउंड वाला टाइप का कंसिस्टेंसी। तो आइए पहले इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है क्या ये समझते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, एक्यूरेट सरफेस डिटेल्स। ऑब्वियसली ये तो भाई मोस्ट कॉमन है सब में, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप एडवांटेज में एक चीज तो लिख ही सकते हैं कि सरफेस डिटेल को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी इज गुड। नाम ही है इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल, तो अभी इलास्टोमेरिक है तो ऑब्वियसली इलास्टिक प्रॉपर्टी तो गुड रहेगा ही, मतलब कि रबर लाइक, ये स्ट्रेचेबल रबर लाइक, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। टियर स्ट्रेंथ इज एक्सीलेंट, टियर स्ट्रेंथ इज एक्सीलेंट, स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब कि ये टियर नहीं होगा। टियर स्ट्रेंथ मतलब कि ये रेजिस्ट कर पाएगा टियर को, आराम से नहीं टूटेगा, जैसा कि हमने लास्ट में देखा था ना एल्जिनेट में। एल्जिनेट इजीली टियर हो पा रहा था, पर इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल इजीली टियर नहीं होगा। फिर क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज पॉसिबल। ऑब्वियसली एल्जिनेट का डिसएडवांटेज को ओवरकम करता हुआ हमारा इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग उससे कर सकते हैं। फिर क्या, कम्स इन वैरायटी ऑफ कलर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अलग अलग कलर्स में आता है, जिससे कि हमको पता चलता है उसकी विस्कोसिटीज, जो पुट्टी कंसिस्टेंसी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे येलो कलर में है। फिर ऊपर से ये जो लाइट बॉडी कंसिस्टेंसी है वो ब्लू कलर में है। तो अलग अलग कलर से हम अलग अलग विस्कोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग अवेलेबिलिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये बहुत ही कलरफुल सा इंप्रेशन मटेरियल है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो, ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेज होगा ही। इसका डिसएडवांटेज को देख लेते हैं, हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, इसमें ना क्लासिफिकेशन है, इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल का भी क्लासिफिकेशन है। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो 3 मेजर क्लासिफिकेशन है। एक है पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड और एक सिलिकॉन, ये उसमें एडिशन सिलिकॉन या कंडेंसेशन सिलिकॉन। एडिशन सिलिकॉन को हम पॉलीविनाइल सिलोक्सेन भी कहते हैं। सारे ही क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, पर हाइड्रोफिलिक होता है सिर्फ पॉलीईथर। सारे जैसे कि पॉलीसल्फाइड, एडिशन सिलिकॉन, कंडेंसेशन सिलिकॉन सब हाइड्रोफोबिक है, बस पॉलीईथर है हाइड्रोफिलिक। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिसएडवांटेज हुआ ना भाई, हाइड्रोफोबिक है, मतलब अगर हम माउथ में इंप्रेशन ले रहे हो तो उसका पूरा माउथ को मॉइस्ट फ्री करना होगा, सलाइवा को ड्राई करना होगा, तो वो एक टफ टास्क है कि मॉइस्ट माउथ नहीं रह सकता है। बस एक पॉलीईथर से लेते वक्त चलेगा कि हाँ सलाइवेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज हाई। अभी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज हाई का क्या मतलब है कि there will be thermal contraction while moving the impression material from mouth to room temperature। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इंप्रेशन लिए माउथ का, टीथ का और ओरल स्ट्रक्चर्स का, फिर उसको निकाल के हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल उसको रहने दिए, सेटल होने दिए, तो क्या होता है, इंप्रेशन मटेरियल, ये ट्रे पे जो इंप्रेशन मटेरियल से जो इंप्रेशन लिया हुआ है, इसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। क्यों, क्योंकि माउथ का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू रूम टेम्परेचर। अगर ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे लाया गया तो उसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि हमारा तो जो इंप्रेशन लिया गया है बहुत प्रॉपर और एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उस पर, अगर हम जो कास्ट पोर करके कास्ट बनाएंगे वो हमारे असली वाले दांत से तो थोड़ा श्रिंक्ड रहेगा, तो ये क्या होगा, क्यूरिंग श्रिंकेज भी है इसमें आगे, तो ये तो डिस्टॉर्ट हो गया ना, हमारा जो नॉर्मल दांत का साइज था, शेप था, वो तो श्रिंक्ड फॉर्म में बनेगा क्योंकि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसी के साथ सम अप करते हुए एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योरिंग श्रिंकेज, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्योरिंग श्रिंकेज होता है। क्योरिंग श्रिंकेज क्या है, क्योरिंग मतलब जब ये सेट हो रहा हो,
सेटल हो रहा हो, तब इसमें श्रिंकेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है। हाँ, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम इम्प्रेशन लिए तो हम तुरंत ही वी पोर द कास्ट इमिडिएटली। तो उससे क्या है कि श्रिंकेज को हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। इससे पहले कि पूरा डिस्टॉर्ट हो, हम उससे पहले ही कास्ट पोर कर देते हैं। एक और क्या है इसका डिसएडवांटेज कि लॉस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स लाइक हाइड्रोजन गैस। ये अच्छा, भी श्रिंकेज होता ही कैसे है? सपोज आप इसको समझिए कि इम्प्रेशन मटेरियल है, इसके अंदर में कुछ कुछ केमिकल्स है, उस केमिकल्स में हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हुआ आफ्टर सेटिंग। तो हाइड्रोजन गैस जहां से रिलीज हुआ, वो कुछ तो स्पेस वहां खाली करेगा, तो वही स्पेस श्रिंक होगा। इस यही यही ये प्रोसेस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट रिजल्ट इन क्योरिंग श्रिंकेज। लास्ट क्या है, पुअर रिटेंशन टू ट्रे। मतलब इसका ट्रे में रिटेंशन भी बहुत पुअर है, इसीलिए हम कभी कभी ट्रे एडहेसिव भी लगा के इम्प्रेशन मटेरियल को रख के फिर इम्प्रेशन लेते हैं। तो ये सारे हैं इसके डिसएडवांटेज, बट क्योंकि ये बहुत मतलब ये फाइनेस्ट सरफेस डिटेल रिकॉर्ड करता है और ये बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है, इकोनॉमिकल है, मैनिपुलेटिंग भी इजी है, ओवरऑल ये बहुत कलरफुल है और अच्छा इंप्रेशन लिया जा सकता है इससे। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। सो हैव वी एंड, थैंक यू गाइज. I hope the things were clear to you. If you have any doubt or if you want to offer us some suggestions to improve our video content, then please comment. And if you wish, you can like, subscribe and share. But you have to study the contents which were taught here, either from the book or from the slides. I'll provide the notes in the description of this video. So please do read the content, okay? That would be helpful for you. So see you soon in the next video.